हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1151st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। धन्यवाद करता हूं मैं पारेख ब्रदर्स जूलर्स का। पारेख ब्रदर्स जूलर्स नागपुर बेस्ट ज्वेलरी स्टोर एंड हैज बीन सिंस 1947 एंड दे हैव गिवन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गोल्ड। आई थिंक विमेन आउट देयर जो एक बार जीवन में जाकर पारेख ब्रदर्स से शॉपिंग करके आई है, वो जीवन भर वहीं से शॉपिंग करेंगी। ये उन्होंने एक अनडिस्क्लोज्ड बात करता हूं मैं पहनावा बुटीक का। द शो इज इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। They have a store in Dharampet. They have their flagship store at Sadar. I think one of the most beautiful stores in Nagpur city is Pehnava Boutique. जो अभी तक नहीं गई हैं वो प्लीज जाएं। I want to thank Hampur Antra Multi Services का धन्यवाद। Really want to thank Antra Multi Services helping a lot of women out there with loans, with mudra loan, business loan and property loan, two-wheeler and four-wheeler loan to women. And really want to thank Cuts Salon. वैसे धन्यवाद करता हूं मैं उनका जो ऐसी महिलाएं जो अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करती हैं और जीवन में वो काम करके दिखा सराहाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ऐसी महिलाएं विमेन ऑफ द ईयर एपिसोड्स में आती हैं। आज की जो हमारी मेहमान है वो सबसे पहले तो शाहरुख खान फैन है। शी इज अ शाहरुख खान फैन। शी इज डेफिनेटली one girl who has been the best friend of her mama and have always worked hard to ensure that the brand Pehnava grows. With me, मेरी आज की मेहमान है a very proud Nagpurkar, Sonal Oberoi. Hi Sonal. Hi. How are you? All good. Thank you so much. Congratulations being Women of the Year. Thank you. Thanks a lot. I introduced you as a Shahrukh Khan fan. I'm a big fan of बताइए कि और ट्रेन से ज्यादा तेज तो सिमरन भाग रही थी। होप यू रिमेम्बर। So you were what were you in? Yes. I was in 8th standard. Okay. And the best part of this movie is that I watched this movie with my mom only. अच्छा। I thought your mom is a great critic, है ना? तो उन्होंने बोला नहीं, अरे बेटा जी रुक जाती, उतर जाती। ना mama is like movie देखने चलो, let's go together. Okay. अच्छा, tell me one thing that I just also mentioned that you've been your best friend. So you head the Pehnava boutique at Dharampet store. You head it, and Pehnava is a brand now. In everybody, I think all the best, good-looking women out there in Nagpur, they know Pehnava क्या है ना? और Pehnava में कितनी बेस्ट ऑफ क्लोथिंग मिलती है। अच्छा, जब ये ब्रांड बन रहा था, उस ब्रांड के इनिशियल स्टेज में, you were there. You were there with Mrs. Jyoti Budhraja. How did it start? वो initial days में क्या याद आ रहा था? Very first thing, it's a blessing to be her daughter. Like, I think everyone knows her, Jyoti Budhraja. She's a name in town right now. Everyone knows her by her work, by her nature. And I feel it's a real proud thing to be her daughter. And I've seen her working from childhood. From like maybe when we were in school time, we have seen everything, ups and downs, everything of hers. So जब ये दौर गुजर रहा था, ups and downs का, when she was working hard and you were there, है ना? तो in her interview also she mentioned that you were always there with her, है ना? तो क्या सीखा मम्मा से? What was that thing which you learned from her? Everything. I always tell it to my staff also कि I have not started sitting on the counter. It's like मम्मा ने मुझे सिखाया है कि आपने छोटी सी हेमिंग से लेके भी सब सीखना है. So we have done all that. हम स्टाफ के साथ बैठ के हमने काम करना भी सीखा है, मास्टर्स के साथ बैठ के हमने कटिंग भी सीखी है, क्लाइंट से कैसे डील करना है वो भी सीखा है. So every possible small thing I have learned from her. You think this business of clothing is full with competition? Definitely, but यहाँ पर stand out क्या करता है? Stand out is how you deal with your clients, how you give them importance, how you treat them.
सी कपड़ा सब रखते हैं, सब बेच सकते हैं, बट आप अपनी एक स्पेशल चॉइस रखते हो और एक स्पेशल ट्रीटमेंट क्लाइंट को देते हैं. दैट इज जी. व्हाट स्पेशल विद आर पहनावा. लाइक ईच स्टोर्स ऑफ आर, हर क्लाइंट को हम सब मिलके, लाइक माई मॉम, मनप्रीत, साहिबा, माई हस्बैंड हरनीत, हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं. Whenever you see us dealing with clients, you will see कि हम clients को सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि बस आप आइए और देखिए. We guide them for their choice also. Everything. जब सोनल छोटी थी, which school did you go? बिशप कॉटन. ओके. तो आई वॉज इन SMS. तो हम बोलते थे BCS, जूते की लेस, जूता मारो उड़ गई लेस, लेस गई पानी में, BCS गई नाली में. ये सुना है कि नहीं सुना है? नहीं, और ऐसा सुनना भी नहीं है. अच्छा, तो when you were in school, what was the aspiration? क्या बनना चाहती थी सोनल? Never thought of anything. एक्चुअली यस, कुछ सोचा ही नहीं था. बस ममा को देखा एंड थॉट ऑफ ज्वाइनिंग भी नहीं, बस करते रहे साथ में. बट पता ही नहीं चला जब इसमें इंटरेस्ट भी आ गया एंड आपने नॉलेज भी गेन कर ली. सो आई एम नॉट थॉट ऑफ एनीथिंग, बट यस, नाउ आई एम इनटू इट एंड आई एम लविंग. तो ये जो ये जो पूरी की पूरी जर्नी रही है, इसमें कब ऐसा लगा कि अब अपने आप को भी चेंज करने की जरूरत है, अब अपने आप को भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है? चेंज आवरसेल्फ एवरी डे. हम रोज कुछ सीखते हैं और अपने अंदर उसके लिए एक न्यू चीज ऐड करते हैं. मतलब आप क्लाइंट से भी कई बार सीखते हो, आप अपने काम से रोज कुछ सीखते हो. यू गेट इंट्रोड्यूस टू सो मेनी पीपल एवरी डे. सो यू लर्न एवरी डे एंड अपने अंदर वो चेंजेस आप रोज लाओगे. एक मैं चीज महसूस करता हूँ दैट आपका बहुत ज्यादा फोकस काम के प्रति रहता है, एंड यू डू नॉट थिंक अबाउट दीज वर्ड्स लाइक पेन, स्ट्रगल, challenges, obstacles. I don't think you actually think about it also. I think we all are workaholic, all of us. हमारा एक ही फंडा है, दवाई खाओ और काम पे चलो. You can hear this from my husband also. वो हमेशा बोलता है सोनल को कोई बोल दे बीमार है तो इट्स लाइक दवाई खाओ और काम पे चलो. नहीं, लेकिन ये कितनी अमेजिंग थॉट है अपने काम के प्रति की, जो ऑनेस्टी है. हाउ डू यू थिंक अबाउट, हाउ डू यू सी दैट? I feel proud of it and I love it because when you love your work, you want to be there every time, always. So I'm happy and I feel कि ठीक है, medicines, pains ये सब चलता रहता है, that's a part of life. But काम पे अपना एक focus proper देना is very important. So when Jyoti ma'am used to go out work, है ना, get orders, deliver orders, she did everything from the scratch, है ना. तो that time you were at home and you were mumming Manpreet. Manpreet was younger to you that time. Yeah, he so was. those days. Now Manpreet is a super busy man. Yeah. So when now you see Manpreet and वो Manpreet जो उस समय जब आप लोग छोटे थे, how do you see छोटा that? भाई, and I'll tell you, वो मम्मा को हमेशा अपनी ट्रिप से जब मम्मा वापस आते थे तो कहता था मम्मा कुछ बना के घर जाया करो, ये रोज मुझे जली हुई सब्जी डब्बे में देती. Don't tell me. Seriously, you can ask him. Okay. सिंपल आंसर था, मम्मा आप बना जाओ, ये जली हुई सब्जी देती है. Okay. So जब आज आप देखती हैं that he is a pillar, he's a strong pillar for पहनावा, the brand, है ना, and he travels, he works, he ensures. Also your husband Harneet, he these are pillars of pehnawa and strong pillars. How do you see Harneet as transforming, working so hard? Like coming from a very different background, उन्होंने ये काम इतना अच्छे से ऑप्ट कर लिया है and touchwood कभी लगा ही नहीं कि he was never a part of this industry. Like he has taken over almost everything. And Manpreet, yes, he's a pillar. सबको गाइड करता है, हर चीज समझाता है, प्रॉपरली समझाता है, and हर बंदे को गाइड करता है इन फैमिली. बहुत जल्दी वो मुझे भी गाइड करने वाला है कि कैसे शो करना है. हो सकता है, maybe in near future. Yes. Maybe in near future. Yeah. But tell me one more thing, Sonal. अब चूंकि एक ऐसा दौर गुजरा, हर किसी की जिंदगी में एक अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं, आई जस्ट नो योर पर्सपेक्टिव अबाउट इट, कि देयर आर लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर जो ये शब्दों को जब सामने देखते हैं, आपने बोला कि आप ये सब चीजें मायने नहीं रखती, बट जब वो ये शब्दों को
देखती हैं पेन, स्ट्रगल, चैलेंज, ऑब्स्टेकल, कंपटीशन, तो वो पीछे अपने आप को खींच लेती हैं. व्हाट डू यू थिंक शुड बी ड्राइविंग देम? व्हाट डू यू सजेस्ट देम? I'll just say one thing: keep all your pains aside and just focus on your work, because these all are part of life. आपका काम, आप जितना पॉजिटिविटी अपने अंदर रखेंगे उतनी पॉजिटिविटी आप बाहर देंगे. सो कीप योरसेल्फ पॉजिटिव, थिंग्स विल बी पॉजिटिव अराउंड यू. ये समय के साथ बहुत सारी चेंजेस हुए हैं. सिंगल मदर्स का कल्चर आया है, एक कल्चर आया है, यू नो, पीपल आर नॉट, व्हेन दे आर नॉट हैप्पी दे टेक क्विक डिसीजंस ऑफ डिवोर्सेस. द डिवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग. हाउ डू यू सी दैट? डिवोर्स इज नॉट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, हर चीज को समझा सकते हो. डिवोर्स लेके व्हाट विल बी द फ्यूचर? आई डोंट थिंक डिवोर्स इज अ सोल्यूशन टू गेट सेपरेट फ्रॉम वन मैन एंड से दैट या यू हैव गॉट द वर्ल्ड. नो, इट इज नॉट. आपको अपने लाइफ पार्टनर से अपनी पूरी बात रखनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए. एंड इफ यू आर करियर फोकस्ड तो टेल हिम प्रॉपरली दैट यू आर अ करियर फोकस्ड. आई थिंक अगर अंडरस्टैंडिंग पर्सन है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा एंड ही विल हेल्प. जैसे अनीत ने मुझे हर स्टेज पे हेल्प किया है, हर स्टेज पे मेरा साथ दिया है. सो दैट वे आई विल से अनीत इज अ वेरी गुड हस्बैंड. Okay. So I hope if you tell him this, he'll buy a diamond jewelry for you today. Today surely we are going to Button Bhai. No, go to Parekh Brothers. Oh yes, we will go to Parekh Brothers. Okay, ठीक है, चलिए मैं बच गया. Okay. अच्छा सोनल, you have also, you know, children at home. How do you manage? Children, husband, calm. There's too much in the kitty, है ना? How do you manage? And what is your me time? When do you get me time? Screen time 10 to 11 in the night. Even Okay. I tell my kids it's my screen time. Okay. But how do you manage this? Touch wood, it's getting managed in the family. See, I have twins, so when kids were very small, तो मेरे in-laws ने मुझे बहुत support किया है. And अभी भी with mama and all, they all are taking care of them when I'm at work. And more of the time now they have grown up, तो उनका स्कूल में spend हो जाता है. And possibly when you know that you have to do this also, then touch wood, things get balanced. What do you enjoy the most? Being at home, watching TV, or working? Working. And why do you take so much time? Like TV time, yes, I need some TV time, but working, yes, I can say I enjoy more working. I want to be at my place on time. अच्छा, जब आप अपनी मम्मा की बचपन की सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड रही, है ना, और उसके बाद कुछ सालों बाद एक और बेस्ट फ्रेंड की एंट्री हुई, है ना, when Sahiba came. I call her partner in crime. Okay, so when your partner in crime entered, how was this? वो initial days कैसे थे? It's a lovely feeling, as I don't have a real sister, so she is a good sister, a fun-loving person. Everything to me. In fact, मुझे अब अपनी कोई बात करनी होती है तो then फिर मम्मा से पहले एक बार मैं इससे जरूर बात करती हूँ. Now what to do? So everything. साहिबा से एक टचवुड अच्छा ही रिलेशन है, डिफरेंट रिलेशन. And you know, do you also tell secrets of Manpreet to Sahiba? Have you done that? स्टार्टिंग में yes. And maybe साहिबा भी मुझे सारे सीक्रेट्स बता देती है. Okay. अच्छा, अब क्या ड्रीम है, क्या करना है? What's the big dream? ड्रीम इज ओनली वन, पहनावा की ग्रोथ. पहनावा को बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, मार्केट में एक्सपैंड करना है. हमें धर्मपेट में टचवुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. एंड बीइंग अ प्रीमियम एरिया, यहाँ क्लाइंटेज, पीपल वेरी गुड. बस इस चीज को हम सब ने बढ़ाना है. जैसे अभी हमने अपना फ्लैगशिप स्टोर खोला है, सो वी जस्ट वांट टू एक्सपैंड एंड मेंटेन दैट थिंग. सिर्फ एक्सपेंशन नहीं है, अपने काम को मेंटेन करना, अपनी सर्विस को मेंटेन करना है. What is more difficult? Maintaining a store or selling products? What is difficult? Maintaining the store. सेलिंग तो सब कर लेते हैं, बट उस चीज को जो आप अपने सेलिंग पे बोलो उसको सर्विस में दो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अब चूंकि सदर, धर्मपेट, there are 2 big stores and everybody in the family is involved into this. Do you think the 3rd store will come? Surely. And 3rd, 4th, 5th. अरे रुकना नहीं है. रुकना नहीं है. A lot of people think पहनावा is very expensive.
बाहर से ही लोग इस बात को अपने एक अज्यूम कर लेते हैं. What do you have to tell them? मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे हर स्टोर में विजिट करिए. हाँ, पहनावा इज नॉट एक्सपेंसिव. हम एक बेसिक 2000 से लेके हर रेंज अपने स्टोर में मेंटेन करते हैं. रादर इट्स अ कुर्ती, इट्स अ कॉर्ड सेट, इट्स अ डिजाइनर इंडो वेस्टर्न, मिड रेंज टू हैवी रेंज, वी मेंटेन एवरीथिंग. तो प्लीज विजिट जिनको लगता है कि पहनावा एक्सपेंसिव है. अच्छा, एक और चीज, पहनावा इज नॉट इनटू ऑफर्स. आप यू डोंट बिलीव इन ऑफर्स, यू डोंट बिलीव इन डिस्काउंट्स. तो कभी कभी कस्टमर्स अपसेट होके जाते हैं. बट वी ऑलवेज टेल देम कि 200-300 रुपए डिस्काउंट से सर्विस या हमारा माल नहीं आता है. इट्स लाइक कि आपको हमारा काम पसंद आना चाहिए, हमारी क्लोथिंग पसंद आनी चाहिए. यू आर हेयर टू स्पेंड. हाउ डज इट मैटर अगर हम कुछ डिस्काउंट दें या ना दें? आपको आए ही स्पेंड करने. सो आई डोंट थिंक अच्छी चीज लेने आए हैं. यस, अच्छी चीज लेने आए. ओके, ये दिस वुड बी माई लास्ट क्वेश्चन. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, ठीक है, उसका एक सुनहरा पन्ना रहा और उस पन्ने में लिखा रहा सोनल ओबरॉय, है ना, सोनल बुधराजा ओबरॉय. वाई टू फॉरगेट बुधराजा, है ना, सोनल बुधराजा ओबरॉय. उसके नीचे वो कौन सा थॉट, वो कौन सा कोट, वो कौन सी लाइन लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग हमेशा सोनल को याद करें? चलते रहो लाइफ में, कभी मत रुको फॉर एनी रीजन. जस्ट कीप ऑन गोइंग. कोई चीज लाइफ में आपको स्टॉप नहीं कर सकती है. आपका हार्ड टाइम, आपका गुड टाइम सब वैसा ही रहेगा. बट अगर आप रुक जाओगे तो सब रुक जाएगा. सो जस्ट कीप ऑन गोइंग. Super. I think this thought itself is a great thing, and there's a lot of takeaway from this show. एक तो ये कि आप अपनी मम्मा की अगर बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो आपकी मम्मा और आपका वक्त बदल सकता है ना. एक ये मैं और मेरी मम्मा टचवुड फ्रेंड्स ही हैं. लाइक फॉर मी शी इज अ वर्ल्ड. लाइक आई डू एवरीथिंग बाय टॉकिंग टू हर, आस्किंग हर. सो फॉर मी शी इज एवरीथिंग. और बचपन में अगर आप छोटे भाई को जलेबी सब्जियां खिलाओ तो वो आगे जाकर बहुत बड़े स्टोर का मालिक बन जाता है ना, और अपने काम को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता है. दिस ऑल्सो अ टेक अवे, है ना. कुकिंग भी सीख ली थी कि इसके हाथ का खाना मैं खाना पड़ता. भाई कुक भी बन जाता है. चलिए, एक और टेक अवे, एक सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे, और वो है कीप गोइंग. अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स विल कम, या बट अगर आप रुक गए तो सब कुछ खत्म. लेकिन आप चलते रहे तो यू नेवर नो, यू ओवरकम इट एंड यू फ्लाई हाई, है ना. कीप स्माइलिंग, कीप गोइंग. सुपर. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया. Thank you so much for that, and congratulations being Women of the Year, not just for this year but all the years coming. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. सोनल ओबरॉय से खास बात हुई, मुलाकात हुई. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ट्यूजडे टू स्टार्ट द डे, बिकॉज ऑल द लेडीज आउट देयर जो शायद इन शब्दों को, मैं बार बार इस शब्द का जरूर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इस किस्म की एक वाइब है महिलाओं के बीच में, जब वो चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, कॉम्पिटिशन, कंसर्न्स, कॉन्शियसनेस, इन सब चीजों को जब पकड़ कर लेकर चलती है ना, वो खुद को भूल जाती है. आप खुद को याद कीजिए और सोनल ओबरॉय की बात मानिए कि कीप गोइंग. आप चलते रहेंगी, पत्थर आएंगे, कंकड़ आएंगे, लेकिन हो सकता है नरम सफेद रेत भी आ जाए. इस चलने के बाद आपको सुख मिले. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक गुड़िया है जो अपनी मम्मी के आगे पीछे घूमती रहती है, शाहरुख खान के गानों को एंजॉय करती रहती है और आपको सिर्फ इतना समझाती रहती है कि आज भले आप हार गए लेकिन कल आप जीतोगे, तो समझिए वो सोनल बुधराजा ओबरॉय बन रही है. जिंदा रहें. जय हिंद.